हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्मे कॉमर्स अकेडमी। आज के लेक्चर में हम लेने वाले हैं अमालगमेशन का सम नंबर 2, पेज नंबर 1.15 आपके टेक्स्ट बुक का। C and D are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2, and C and D where partners sharing profit and losses equal, means 1:1. Following were the balance sheet as on 31st March 2024. Balance sheet as on 31st March 2024. Creditors, bills payable, Mrs. B loan, Mrs. D loan, outstanding salary and capital accounts. Assets में दिया machinery, furniture, stock, debtors, fixtures and cash. The two firms amalgamated on the following terms. Mr. B agreed to pay Mrs. B loan and Mr. D agreed to pay Mrs. D loan. Outstanding salary was paid in full by the respective firms. मतलब दोनों भी फर्म ने अपनी आउटस्टैंडिंग सैलरी कैश में पे की है. Creditors of both the firms were taken by the new firm at a discount of 5%. Machinery is subject to 5% depreciation of both the firms. Furniture of C and D was sold in the market for 8,000 and furniture of A and B was not taken over by the new firm. So when not taken over by the new firm, in that case, it will be distributed in profit sharing ratio. In fact, in capital ratio. Now, stock of A and B was valued at 22,100 and stock of C and D was valued at 21,000 and fixtures were not taken over by the new firm. So fixtures will be distributed to partners. Okay. So let us start with the sum. Now first of all, capital account. See, capital account 30 and 20. A and B is 30 and 20. So by balance brought down 30 and 20. And the top C and D is 25,000. So by balance brought down 25,000 each. 25,000. Okay. Now let us come to adjustment. Cash account balance 3,400. A और B का, so two balance brought down 3,400 और C and D का कैश बैलेंस है 3,300. So two balance brought down 3,300. Okay? ठीक है. अब यहाँ पे लायबिलिटी साइड में कोई रिजर्व या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कुछ भी नहीं है, सो देयर इज नो डिस्ट्रीब्यूशन. अब पहला एडजस्टमेंट, मिस्टर बी एग्रीड टू पे मिसेस बी लोन. नाउ व्हेन पार्टनर इज टेकिंग ओवर द लायबिलिटी, तो हमारी जर्नल एंट्री क्या आएगी? लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सो बी के कैपिटल अकाउंट में बाय मिसेस बी लोन, मिसेस बी लोन, मिसेस बी का लोन कितना है? 10,000. सो बी के कॉलम में 10,000. अब मिसेस डी का लोन है, वो डी ने टेक ओवर किया है, तो बाय मिसेस डी लोन 10,000. The first adjustment is over. Outstanding salary was paid in full. अभी देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी दिया है, ए और बी का 2,000 और सी एंड डी का 15,000. ये उन्होंने कैश में पे कर दिया. सो कैश के पेमेंट साइड में बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी सैलरी ए और बी का है 2,000 और सी एंड डी का है 1,500. सो बाय आउटस्टैंडिंग सैलरी सैलरी 1,500. क्लियर? Third adjustment है, creditor of both the firms were taken by new firm at a discount of 5%. Now see, creditors कितना है? 10,000 है और बी का. 10,000 के ऊपर 5%, so 500, right? So by creditors. Now see, when creditors gives discount, our liability will reduce. So when liability reduces, our entry will be liability account debit to profit and loss adjustment account. So by creditors
500 एंड CND का है 15,000 पे 5% 750. So my creditors 750. लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स आ जाएगा. क्रेडिटर्स टोटल क्रेडिटर्स दोनों का मिला के 10 and 15 25 था. 25 में से 500 प्लस 750 1250 माइनस कर देंगे. सो 23,750 विल बी योर टोटल क्रेडिटर्स. सो लायबिलिटी साइड में जाएगा क्रेडिटर्स 23,750. ओके. देन मशीनरी सब्जेक्ट टू 5% डेप्रिसिएशन ऑफ बोथ द फर्म्स. अभी देखो ए एंड बी का मशीनरी कितना है 20,000 पे 5%. सो 1,000. So to machinery, profit and loss adjustment account debit to asset account. To machinery account 1,000 और CND का जो है वो है 27,000 पे 5% 1350. 27,000 के ऊपर 5% करो तो 1350. So to machinery 1350. अब देखो मशीनरी है दोनों का मिला के 47,000 माइनस 1,000 प्लस 1350. सो 2350 माइनस करके 44,650. सो एसेट साइड में मशीनरी 44,650. Then furniture of CND was sold in the market for 8,000. CND का फर्नीचर हमने कैश में बेचा तो हमारी एंट्री क्या आएगी कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी. सो कैश टू मशीनरी 8,000. अभी देखो CND एक मिनट फर्नीचर तो फर्नीचर है तो फर्नीचर 8,000 में बेचा. अब देखो CND का फर्नीचर कितना है 9,000 है बेचा 8,000 में. सो 1,000 का लॉस. सो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट साइड टू फर्नीचर 1,000. Furniture 1,000 and furniture of A and B was not taken over by the new firm. Not taken over by the new firm. So when assets is not taken over by the new firm, assets should be distributed to partners in their capital ratio. अब यहाँ पे capital ratio 3:2 है. तो furniture कितना है 12,000 का है A और B का. So 12,000 into 3/5 equal to 7,200 और 12,000 into 2/5 equal to 4,800. सो हमारी एंट्री क्या आएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर. सो टू फर्नीचर 7,200 and 4,800. Right? Now our next adjustment. अब यहाँ देखो CND का फर्नीचर हमने सेल कर दिया है और A और B हैव टेकन ओवर. तो यह फर्नीचर बैलेंस शीट में आएगा नहीं, वो डिस्पोज हो गया. ओके. फिक्चर्स वर नॉट टेकन ओवर बाय द न्यू फर्म. फिक्चर्स दोनों A और B और CND दोनों का भी न्यू फर्म ने टेक ओवर नहीं किया है, तो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. फिक्चर्स कितना है 1,600 and 1,200. तो A को मिलेगा 1,600 into 3/5 और B का 1,600 into 2/5. $960 और 640.
960 और 640. तो 2 फिक्सचर, A will have to bear 960, B 640. अब C एंड D का फर्क कितना है? 1200 है. दोनों पार्टनर का इक्वल रेशियो है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. 600 600. So 2 fixture, 600 600. When assets are taken out by partner, partner's capital account debit to asset account. Next, fixture कब हो गया? Stock of A and B was valued at 22,100. अभी देखो स्टॉक कितना है? 20,000 है A और B का. Now it is valued at 22,100. So there is increase in the value of asset by 2,100. So when there is increase in the value, asset account debit to profit and loss adjustment account. So by stock 2,100. और जो C&D का है is valued at 21,000. अभी C&D का कितना है स्टॉक? 24 है. Now it is valued at 21. So there is reduction in the value of assets. So profit and loss adjustment account debit to stock account 3,000. Stock account 3,000. Second effect, asset stock 22,100 and 21. So 43,100. 43,100 in your balance sheet. Now डेटर्स के रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया है. सो डेटर्स जाएगा डायरेक्टली एसेट. डेटर्स है 19 and 17, so 36,000. उसका कोई आरडीडी का एडजस्टमेंट नहीं दिया है क्वेश्चन. सो नो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में कोई इफेक्ट नहीं आएगा. चलो अभी पहले फाइंड आउट करते हैं प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन. सो यहाँ पे है 2600 माइनस डेबिट साइड में 1000 है, तो यहाँ पे 1600 का प्रॉफिट है. 1600 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन. सो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट A और B. 1600 into 3/5 and 2/5, so 960 and 640. Profit है second effect, partners capital account credit side. So by profit and loss adjustment account 960 and 640. Now C and D का यहाँ पे लॉस है 3 and 1 4 and 1 5350 minus 750. So 4,600 का लॉस है. So by partners capital account. अब उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल है. So 2300. So C and D 2300 each. रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज हो गया C and D का. नाउ लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड. तो C and D का टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 2300 and 2300. नाउ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करें. 30,960 क्रेडिट साइड का टोटल है ए का, बी का है 30,640. सो नाउ 30,960 माइनस 8,160, 7,200 प्लस 960, 8,160, 22,800 उसका बैलेंस आएगा. बाय बैलेंस कैरी डाउन 22,800 ए का कैपिटल आएगा.
ना यहाँ पे आया 30,640 माइनस 5440 25,200 25,200 30,640 राइट। ए और बी का कैपिटल आ गया। कैपिटल ए बी सी एंड डी। ए का कैपिटल आ गया है 22,800, बी का कैपिटल है 25,200। अब सी का कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं। सी 25,000, डी 35,000। सो सी का 25,000 माइनस 2,900, 22,100, 22,100 to balance carried down. इसका भी है 35,000 minus 2,900, 32,100. सी एंड डी का भी कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया। अब उसके कैपिटल बैलेंसेस सी 22,100 एंड डी 32,100। $23, $48, $70, $102, $200। Now cash account. ए और बी का कैश है 3,400 माइनस 2,000 का पेमेंट किया, सो 1,400 बैलेंस आया। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। सी एंड डी का 8 और 3, सो 11,300 माइनस 1,500, 11,300 माइनस 1,500 9,800. So by balance carried down 9,800. So C and D का 9,800 plus A और B का 1,400, 11,200 कैश बैलेंस है। कैश 11,200। अभी एसेट साइड में सब आ गया, मशीनरी आ गया, फर्नीचर तो डिस्पोज हो गया, स्टॉक आ गया, डेटर आ गया, फिक्सचर भी ये हो गया। अभी कैश ओके। इसके अलावा क्रेडिटर्स का था बिल्स पेएबल 9,000, बिल्स पेएबल 9,000, so 102 यहाँ पे आ जाएगा 950, 102 and 23, 125 and 9, 134, 950। एसेट साइड में 650, यहाँ पे 950, 11 and 36, 47 and 40, 90 and 44, 134, 950 बैलेंस शीट डेबिट। सो आई होप सम समझ में आया होगा, राइट? अगर किसी को कुछ डाउट है तो आप कमेंट भी कर सकते हो, कमेंट के मैं आंसर देके आपका जो भी डाउट होगा उसको मैं क्लैरिफाई करूँगा। थैंक यू वेरी मच।